So in the last class, we had studied about how to overload special operators. Like we had uploaded new and delete operator, and then we had studied its example. Then we had overloaded this square bracket operator, that is subscript operator. Then we had learned about how to overload the round bracket function call operator. So after that, we had also done how to overload the comma operator. And today we will see how to overload arrow operator, though it is not in the syllabus, but it is given in this PDF that is present on the drive of the course website. So we'll go through it once. So the arrow pointer operator, also called the class member access operator, is considered as unary operator when overloading. And then how to use this operator? We will write the object name of the object, followed by arrow operator and then the element, and it is the general use of the of this operator. Here this object is the object that activates the call, and arrow operator, this must return a pointer. So whenever we are defining this arrow operator, this must return a pointer. तो जब हम इसकी definition देंगे, हम इसकी definition ऐसे देंगे that it should have some it should return some pointer. Okay, it must return a pointer to object of the class, right? And then the element must be some member accessible within the object. Like if I am writing, normally हम क्या लिखते थे? Object dot I is the data member, but here inside my main function I can also use this object ob arrow operator and then I. So I need not create the pointer for this class or for this object. Yes, right? तो हम इसे इसके एक एग्जांपल देख लेते हैं जो यहाँ दी है. एक मिनट. हाँ, okay. Yes. So here inside, if we can see in main, my class is the class and OB is the object. तो यहाँ object मैंने कोई भी यहाँ pointer to object ऐसे नहीं बनाया है, but directly I am using this arrow operator with the object, and I is the data that is in public, that is accessible through main, and I am giving value into this object. ठीक है. अब यहाँ मैंने एरो ऑपरेटर को कैसे ओवरलोड किया है? तो here in the theory we had just studied कि इसका जो रिटर्न टाइप है that is the class pointer. ठीक है. तो यहाँ पर रिटर्न टाइप कोई इंटीजर पॉइंटर नहीं है, कोई फ्लोट पॉइंटर नहीं, बट इट इज ऑफ द टाइप द क्लास दैट वी आर यूजिंग हियर, माय क्लास. ठीक है. तो इसका यहाँ पर माय क्लास एंड देन पॉइंटर एंड देन ऑपरेटर फॉलोड बाय द एरो साइन जिसको हम ओवरलोड कर रहे हैं एंड देन ब्रैकेट. तो इसकी डेफिनेशन में आई एम जस्ट रिटर्निंग दिस पॉइंटर आई एम रिटर्निंग. ठीक है. तो डायरेक्टली क्या है, जैसे हम ob.i यूज करते हैं, डॉट ऑपरेटर नॉर्मली यूज करते हैं टू एक्सेस द डेटा मेंबर ऑफ द क्लास, I can also use arrow operator to access the data member of the class. ठीक है. So like this I can overload the arrow operator. ठीक है. तो हमें arrow operator को overload करते वक्त ये देखना है that it must return pointer of the class, pointer to the object. ठीक है. Okay. So this ends with the operator overloading of special operators. And now we will study about type conversions. Okay. Now first I will write here. So our topic today is type conversion. Okay. So type conversion means it is actually conversion of one data type to another. ठीक है. तो ये हमने पढ़ा हुआ है, पहले भी पढ़ा हुआ है, सी में भी, कन्वर्जन ऑफ वन डेटा टाइप टू अनदर. ठीक है. डेटा टाइप की अगर मैं बात करती हूँ तो मेरे पास में कौन कौन सी डेटा टाइप्स आएंगे इसमें? तो मेरे पास में कौन कौन सी डेटा टाइप्स आएंगी? एक तो आती है मेरे पास में प्रिमिटिव. ठीक है. प्रिमिटिव डेटा टाइप्स. तो प्रिमिटिव में हमारे पास में, या इसको हम बोल देते हैं प्री डिफाइंड डेटा टाइप्स, है ना. तो इसको प्री डिफाइंड डेटा टाइप्स भी बोल देते हैं, जिसमें आता है हमारे पास में इंट आता है, फिर फ्लोट आता है, फिर कैरेक्टर आता है. ठीक है. सो दीज आर द प्रिमिटिव डेटा टाइप्स.
तो यहाँ पर या इसको हम बेसिक डेटा टाइप भी बोलते हैं, ठीक है, बेसिक डेटा टाइप, ठीक है। देन I can I can do type conversion for this int, float and char, ठीक है। तो जैसे हमने पढ़ा था कि अगर मेरे पास में कोई float value है x is equal to 3.14, right, and then I have some integer value x, ठीक है, oh integer value y, then I can write x is equal to y। तो मैंने यहाँ float की value सॉरी, हाँ ये इंटीजर मैंने यहाँ अगर 10 दे दिया, इसको मैं हटा रही हूँ ऊपर से, ठीक है। तो यहाँ मैं अगर यहाँ 10 दे रही हूँ, देन आई कैन असाइन दिस इंटीजर वैल्यू टू द फ्लोट। सिमिलरली आई कैन असाइन द फ्लोट वैल्यू टू इंटीजर बाय डूइंग टाइप कास्टिंग। तो वो सब ऑटोमेटिक हो जाता है या हमें एक्सप्लिसिटली टाइप कास्टिंग करनी पड़ती है, एंड दैट इज द केस ऑफ primitive data types or the predefined data types or the basic data types, right? But in C++, when we started learning C++, we have talked about user defined data type, user defined data type, ठीक है। उसमें हम क्या बात करते हैं, स्ट्रक्चर की बात करते हैं या फिर क्लास के ऑब्जेक्ट्स की बात करते हैं, ठीक है। तो हम जब स्ट्रक्चर के एक वेरिएबल की बात करते हैं या एक क्लास के ऑब्जेक्ट्स की बात करते हैं, there I have to do the type conversion, right? So there I have to do the type conversion in the user defined data types also. ये int, float, char तो आपस में हो रहे थे, इसका टाइप कन्वर्जन एंड टाइप कास्टिंग हो रहा था automatic, but now I have to do type conversion in the user defined data types, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, अगर मेरे पास में एक ऑब्जेक्ट है उसको मैं दूसरे ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट करूंगी, या कोई मेरे पास में यहाँ कोई इंटीजर है उसको मैं ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट करूंगी, या इंटीजर को ऑब्जेक्ट में या ऑब्जेक्ट को इंटीजर में, इस तरह के कुछ केसेस बनेंगे हमारे पास में, ठीक है। तो हमारे पास में कौन से केसेस बनते हैं इन टाइप कन्वर्जन। अब कौन से केसेस बनते हैं टाइप कन्वर्जन में, तो होता है बेसिक टू बेसिक, ठीक है। बेसिक टू बेसिक मतलब जो हमने इंटीजर टू इंटीजर कर दिया या फ्लोट टू इंटीजर, सो दैट इज मेनली डिपेंडेंट ऑन द बेसिक डेटा टाइप, हमारी प्री डिफाइंड डेटा टाइप्स है, फाइन। उसके बाद में हमारे पास में सेकंड केस आता है बेसिक टू यूजर डिफाइंड डेटा टाइप, यूजर डिफाइंड डेटा टाइप, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि बेसिक, तो बेसिक विल बी लाइक सम इंटीजर दैट आई एम टॉकिंग अबाउट। ये इंटीजर को हम किस में चेंज कर रहे हैं, बेसिक टू यूजर डिफाइंड डेटा टाइप। कोई ऑब्जेक्ट बना है, सो हम आपको याद होगा कि जो असाइनमेंट ऑपरेटर है वो राइट टू लेफ्ट काम करता है ना। तो बेसिक, दिस इज बेसिक टू यूजर डिफाइंड डेटा टाइप, राइट। इसको हम कन्वर्ट कैसे करते हैं, क्या ये कन्वर्जन पॉसिबल है, अगर पॉसिबल है तो कैसे करते हैं, तो वो हम इसमें देखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास आता है, वो है यूजर डिफाइंड डेटा टाइप टू बेसिक। इसका मतलब क्या, यूजर डिफाइंड डेटा टाइप, किसी ऑब्जेक्ट को आप किसमें चेंज कर रहे हैं, किसी ऑब्जेक्ट को किसी इंटीजर वैल्यू में, फ्लोट वैल्यू में या कैरेक्टर में, मतलब प्री डिफाइंड जो बेसिक है आपके पास में, प्रिमिटिव डेटा टाइप है, उसमें आप कन्वर्ट कर रहे हैं। तो क्या ये भी पॉसिबल है ऐसा सिनेरियो? इफ इट इज पॉसिबल देन हाउ इट इज डन, दैट वी विल लर्न, ठीक है। आफ्टर दैट फोर्थ conversion will be one user defined data type to another user defined data type, इसका मतलब क्या कि आपके पास में एक ऑब्जेक्ट 1 है, आप उसमें किसकी वैल्यू डाल रहे हो, कोई दूसरा ऑब्जेक्ट है S1 या कोई R1 नाम का कोई ऑब्जेक्ट है, तो एक ऑब्जेक्ट की वैल्यू आप दूसरे ऑब्जेक्ट में डाल रहे हैं, ठीक है। दिस विल बी द सिनेरियो फॉर वन यूजर डिफाइंड डेटा टाइप टू another user defined data type. So we will start with type conversion today. Let's go through its theory first and then we'll go to the programs. So when constants and variables, अभी जो मैंने आपको यहाँ पर सब बताया है, so you just keep in mind you keep in mind, and then we'll just study these lines. So when constants and variables of different types are mixed in an expression,
C++ applies automatic type conversion to the operand as per the certain rules. Similarly, an assignment operator also, 1 minute. Okay. Similarly, an assignment operator also causes the automatic type conversion. तो हमारे पास में built-in data types में तो automatic हो जाता है conversion, but what happens when they are user-defined data types? Then how the type conversion is done? And what if one of the operands is an object and another is the built-in type variable? तो एक आपका ऑब्जेक्ट है, दूसरा आपका प्रिमिटिव या बेसिक डेटा टाइप है, तो उसमें कैसे कन्वर्जन होती है, राइट? सो व्हाट इफ दे बिलोंग टू टू डिफरेंट क्लासेस? आपके पास में दो डिफरेंट क्लासेस के ऑब्जेक्ट्स हैं, फिर आप उसको कैसे आप इक्वेट कर सकते हो? ठीक है, दैट इज डन विद द हेल्प ऑफ टाइप कन्वर्जन, and there we will be using basic to basic हमारे पास में हो जाता है, that we have already studied in C, but now we will focus on conversion from basic type to class type, then conversion from class type to basic type, and then conversion from class type to class type, one object to another of another class. ठीक है, तो फर्स्ट हमारे पास में आती है बेसिक टू क्लास टाइप. बेसिक टू क्लास टाइप मतलब basic will be at right hand side and to the assignment operator, and class type will be at the left hand side. So in this type of conversion, the source type is basic type and destination type is class type, right? So basic to class type का मतलब क्या है? basic to class type इसका मतलब क्या? ये जो हम यहाँ इधर कर रहे हैं basic to class type, तो कोई भी आपके पास में बेसिक, आपके पास में यहाँ कोई इंटीजर कोई वैल्यू है, तो क्लास टाइप यहाँ किसी क्लास का ऑब्जेक्ट है आपके पास में, तो इस तरह का सिनेरियो, इस तरह की कन्वर्जन हमें करनी है. ठीक है, दैट इज बेसिक डेटा टाइप इज कन्वर्टेड टू क्लास टाइप. तो बेसिक डेटा टाइप आप यहाँ कुछ वैल्यू दे रहे हैं, कुछ इंटीजर 6 इन कोई वैल्यू है, 7 कोई वैल्यू है, दैट विल बी नाउ गिवन टू क्लास के ऑब्जेक्ट में. अब वो कैसे सिनेरियो पॉसिबल है? सो दैट इज पॉसिबल बाय टू वेज. वन इज यूजिंग द कंस्ट्रक्टर और यूजिंग सेकंड इज ऑपरेटर ओवरलोडिंग. ठीक है, तो हम इसमें पहले अब देखेंगे कि कैसे इसका हम परफॉर्म करते हैं प्रोग्राम. पहला हमने क्या देखा है कि कंस्ट्रक्टर की हेल्प से हम ये वाला सिनेरियो जो है हमारे पास में ऐसा कुछ पॉसिबल हो सकता है. ठीक है, हाउएवर अगर हम इसको देखते हैं तो हमें लगता है कि ऐसा तो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ये तो कोई प्रिमिटिव डेटा टाइप है, उसको कैसे ऑब्जेक्ट में डाल देंगे. बट दैट इज पॉसिबल द कॉन्सेप्ट ऑफ डेटा टाइप कन्वर्जन. That can be done by two ways. One is the constructor by using constructor and second is operator overloading. ठीक है, तो पहले हम कंस्ट्रक्टर के साथ में करते हैं. तो मैं क्या करती हूँ अभी पहले हैश इंक्लूड ये ले लेती हूँ, इसमें एग्जांपल्स इसमें दे रखी हैं तो इधर है. यस अंश, यस अंश, हाँ जी बोलो अंश. मैम इसका मतलब क्या होगा कि आपका ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू 7, मतलब ऑब्जेक्ट में तो डेटा टाइप्स आएंगे ना अलग अलग, जैसे इंटीजर. हाँ हाँ हाँ, मैं बताती हूँ, 1 मिनट रुको, 1 मिनट. देखो जैसे मैंने आपको क्या बोला कि अगर आपके यहाँ पर मेन के अंदर, मेन फंक्शन के अंदर कोई ऐसा सिनेरियो है इंट x इज इक्वल टू t, ठीक है, और साथ में आप कोई एक टेस्ट t1 इज द ऑब्जेक्ट, और बाद में आप क्या कह रहे हैं t1 में 3 आ जाए, या मतलब x की वैल्यू जो है वो आ जाए, ऐसा आपके प्रोग्राम में अगर कुछ ऐसा एग्जिस्ट करता है, then how it is assumed by the compiler. Anyways, it will not be possible if we think concept. देखो अगर हम नॉर्मली इसको देखते हैं कि ये एक ऑब्जेक्ट है और ये तो हमारा एक है इंटीजर वेरिएबल है x, तो ये तो पॉसिबल नहीं है. But this kind of data conversion is present in C++. But how it is done? If I write this kind of line in my C++ program, how it will be perceived by the compiler? वो तो पहले तो ये एरर दे देगा. बट अगर आप इसको चाहते हैं कि ऐसा कुछ सिनेरियो भी यहाँ पर ये डेटा इस ऑब्जेक्ट के अंदर डल जाए, तो वो कैसे पॉसिबल है? तो उसी का फिर मैं अभी आपको ये प्रोग्राम करवा रही हूँ कि ये कैसे पॉसिबल है. एक बार हम प्रोग्राम कर लेते हैं, फिर उसमें देखेंगे कि कैसे एक नॉर्मल एक वैल्यू हम कैसे ऑब्जेक्ट में डाल देते हैं. अब ऑब्जेक्ट में क्या होता है, अगर मैं एक क्लास बनाती हूँ, देखो यहाँ पर एक क्लास बनाती हूँ टेस्ट नाम की,
तो इसके अंदर मैंने दो वेरिएबल्स ले लिए a कॉमा b, है ना। नॉर्मली हम क्या सोचते हैं कि मेरे पास में अगर मेरे पास में a b है तो क्या आप t1 ऑब्जेक्ट यहाँ ये t1 इज इक्वल टू x लिखा है, क्या आप x की वैल्यू ये जो t है वो आप a में डालोगे या b में डालोगे? आप कहना क्या चाह रहे हो? दिस इज द राइट क्वेश्चन दैट यू हैव आस्क्ड, राइट? दैट इज आल्सो आई एम आस्किंग दैट व्हाई व्हाट वी वांट टू से। हम जब ऐसा कोई सिनेरियो आता है कि यहाँ पर मेरे पास में यूजर डिफाइंड डेटा टाइप है यहाँ लेफ्ट हैंड साइड में, एंड राइट हैंड साइड में मेरे पास में प्री डिफाइंड डेटा टाइप है, हाउ दिस इज सॉल्व्ड इन C++, उसको सॉल्व करने के लिए हम कौन सा कॉन्सेप्ट लगाते हैं, दैट टाइप कन्वर्जन। तो जो हमारे पास में टाइप कन्वर्जन ऑलरेडी C में प्रेजेंट था, दैट वाज ओनली फॉर प्री डिफाइंड डेटा टाइप, बट नाउ वी सी दिस इज आल्सो अ डेटा टाइप, so why not to imply this kind of conversion also on this user defined data type? This is also a data type, yes, this is a primitive data type। जब हम primitive के लिए हम कर सकते हैं टाइप कन्वर्जन टाइप कास्टिंग से भी, why not to build such thing for the user defined data types also? That's why we are learning this topic, ठीक है अंश? I hope it is clear, ठीक है राइट। तो अब मेरे पास में क्या है, I have this test class, तो public में मेरे पास में क्या है, I create one function called void get, ठीक है। तो इसमें मैं क्या करती हूँ, let us suppose I am taking 2 parameters here and then I say a में x की वैल्यू आ जाए एंड देन b में y की वैल्यू आ जाए, ठीक है ओके। तो आफ्टर दैट व्हाट आई डू, I create another function called void display and then I write here cout and then I print the value of and s लिख देती हूँ, I print the value of a and b, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने दो functions बनाए हैं, get and display, okay। so whenever I create object, अब मैं यहाँ पर int main लिख देती हूँ और यहाँ पर इसका मैं object बना दूंगी, okay okay whenever I create object of this class, let us suppose t1, तो अगर मैं यहाँ पर दो arguments देती हूँ 1 and 2, so that will be now assigned to a and b, sorry no I have not created construct। देखो जब मैंने आपको ये यहाँ पर हम क्या बात कर रहे हैं कि हमने अगर यूजर बेसिक, now I am talking about actually 1 minute I should write here basic basic to user defined data type, UDT लिख देती हूँ, user defined data type UDT, ठीक है ओके। सो दिस इज द बेसिक टू यूजर डिफाइंड डेटा टाइप। पहले मैं आपको ये करवा देती हूँ कि इसमें कंस्ट्रक्टर हम जब यूज करते हैं तो करना क्या है। तो हमें चलो यहीं पर आ जाओ, टेस्ट t1 इज द ऑब्जेक्ट, ठीक है। अब मेरे पास में क्या है, लेट अस सपोज जैसे मैंने अभी int x लिया था, int x इज इक्वल टू 7 ले लिया, राइट। मेरे पास में कुछ अगर ऐसा सिनेरियो आता है दैट फॉर टेस्ट इफ आई क्रिएट दिस ऑब्जेक्ट t1 and now I am equating it to x, so how this will be solved? तो हमारे पास में सॉल्यूशन क्या है, मेरे पास में सॉल्यूशन है कि आप पहले कंस्ट्रक्टर बना दीजिए, कंस्ट्रक्टर से इफ यू राइट कंस्ट्रक्टर तो फिर आपके पास में दिस काइंड ऑफ सिनेरियो इट कैन बी सॉल्व्ड, ठीक है। तो अब मैं क्या करती हूँ, मैं गेट फंक्शन को मैं हटा देती हूँ, इसको इसकी जरूरत नहीं है। सो नॉर्मली आई शुड राइट वन, नाउ जो कंस्ट्रक्टर होता है उसका कोई रिटर्न टाइप नहीं होता, यस। सो दिस इज माय डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर, तो आई क्रिएट वन पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर जो मैंने यहाँ int x कॉमा int y ऐसा मैंने अभी बनाया था, देन आई असाइन x की वैल्यू a में एंड b में मैं y की वैल्यू को असाइन कर देती हूँ, ठीक है ओके। सो व्हाट हैपेंस नाउ, व्हेन आई एम राइटिंग दिस लाइन, ठीक है देखो, व्हेन आई एम टेकिंग दिस लाइन t1, मैंने जब t1 बनाया है तो यहाँ पर अगर मैं इसको अब चलाऊंगी t1 इज द ऑब्जेक्ट t1 डॉट डिस्प्ले, देखो t1 डॉट डिस्प्ले, और साथ में अगर मैं इसको सेव करती हूँ, नाउ इट शुड वर्क,
ओहो, एक मिनट, इसको मुझे डेफिनेशन देनी पड़ेगी। हाँ, वन इज द कंस्ट्रक्टर, ठीक है, एक मिनट। हाँ, ओके, सो व्हाट हैपेंस, व्हाट इज द सॉल्यूशन टू डू दिस। यहाँ पर हमें ये सॉल्यूशन, इसका ये सॉल्यूशन है, हमें जब भी आप हम पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर एक बनाते हैं, सॉल्यूशन ये है कि आप पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर बनाइए, और एक पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर में यू कीप ओनली वन आर्ग्यूमेंट, ओनली वन आर्ग्यूमेंट। मेरे पास में मैंने दो यहाँ पर आर्ग्यूमेंट्स दिए हैं, तो आई हैव टू कीप ओनली वन आर्ग्यूमेंट। तो मैं क्या करती हूँ, सिर्फ x यहाँ पर रखती हूँ, ठीक है, एंड देन आई गिव दिस वैल्यू x टू a एंड b, ठीक। However, हमारे पास में रूल क्या होता है कि आप पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर से इन दोनों डेटा मेंबर्स को क्या दे सकते हैं, इनिशियलाइज कर सकते हैं, कोई भी वैल्यू दे सकते हैं। बट पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर, ये तो मेरी अपनी मर्जी है कि मैं पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर में कितने मर्जी पैरामीटर्स दे दूं, ठीक है। तो जब हमारे पास में कभी एक ऐसा सिनेरियो आता है T1 is equal to x, मतलब where you are converting the, you are doing conversion from basic to user defined data type. So this, here you have to keep only one parameter. अब क्या होगा, now this line जो हमने ये ऊपर line लिखी है, see this, now I'm saving it and now it should work. See, now it is getting compiled. Now this will be treated as if T1 is calling the, you can say, अगर हम इसको operator overloading भी कर सकते हैं, right, directly if you want to know, देखो ये ऐसा भी हो सकता है कि आप इसको operator equal to and then you are passing only one argument, that is int x, here you are passing, ठीक है। हमारे पास में दो सोल्यूशन है, या तो आप क्या करिए, एक इक्वल टू ऑपरेटर को क्या करिए, यहाँ पर ओवरलोड कर दीजिए। अगर आप इक्वल टू ऑपरेटर को ओवरलोड करते हैं तो कैसे करेंगे, यू हैव ऑलरेडी डन ऑपरेटर ओवरलोडिंग, वन इज ऑपरेटर, here we have to write void return type option operator keyword then equal to, और फिर I am giving one argument that is int x, ठीक है। इसके बाद आप क्या करते हैं, इसके अंदर आप ये लिख सकते हैं कि जो आपका डेटा मेंबर a है उसमें इस x की वैल्यू चली जाए और साथ में b में भी इस x की वैल्यू चली जाए, ठीक है। सो दिस विल बी नाउ, this can be treated as the ऑपरेटर ओवरलोडिंग। तो हम क्या करते हैं, T1 जो है, T1 डॉट ऑपरेटर देन इक्वल टू एंड देन x कैन बी टेकन एज द आर्गुमेंट, ठीक है। तो दोनों तरह से इसको काम कर सकते हैं। ये तो एक चीज हो गया कि हम इसको ऐसे लिख रहे हैं। दूसरा है, this is the another solution that I am using operator overloading. So another thing is directly if you are using a parameterized constructor, then it should have only one argument and that argument will be now taken as the value that you want to assign to this a and b. अगर आप अब देखो, नॉर्मली अगर आप देखो, आपके पास में T1 है और यहाँ x is equal to 7 है, 7 is only one value and that one value should be assigned to the object. तो उसके डेटा मेंबर्स में एक्चुअली हम क्या कर रहे हैं, उसके T1 के डेटा मेंबर्स में जो कि A एंड B हैं, उसमें 7 वैल्यू को अब असाइन कर रहे हैं, ठीक है। तो here we can use two things, one is the parameterized constructor, but if you are using, see this, one solution is the parameterized constructor, parameterized constructor, but there you have to use only one argument. वो क्यों, क्योंकि हम यहाँ पर हमारे पास में ये एक ही वैल्यू है, ठीक है। वो जो आर्ग्यूमेंट है, जब भी आपने यहाँ पर ऑब्जेक्ट बनाया है, here only it is now compulsory if you are using parameterized constructor, तो जब भी आप इसको इनिशियलाइज कर रहे हैं, जब भी आप इसको डिक्लेयर कर रहे हैं ऑब्जेक्ट को, भी आपको ये वैल्यू को भी यहाँ इक्वेट करना पड़ेगा, there you have to do the initialization, only then parameterized constructor will be called, ठीक है। सो फर्स्ट सोल्यूशन क्या है, पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर आप बनाइए, बट उसमें एक ही आर्गुमेंट पास करिए और फिर उस ऑब्जेक्ट के T1 डॉट A एंड T1 डॉट B में चला जाएगा, ये वाली वैल्यू चली जाएगी,
ठीक है। बट इसके पास में ये जो फर्स्ट आपका ये हो गया, इसके पास में एक कंडीशन है। वो क्या कंडीशन है कि आपको जब भी आप डिक्लेयर कर रहे हैं ऑब्जेक्ट को जब डिक्लेयर कर रहे हैं तभी आपको ये यहाँ पर डिक्लेरेशन टाइम पर ही आपको ये वैल्यू को कन्वर्जन करनी पड़ेगी। ठीक है, यस। तो पहला जब मैंने ये वाला चलाया है दैट इज विद द हेल्प ऑफ द कंस्ट्रक्टर, पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर। सेकंड, अब आप चाहते हो कि मैं यहाँ पर सिर्फ यहीं पर डिक्लेरेशन करूं और नेक्स्ट यहाँ पर t1 यहाँ इज इक्वल टू x कर दूं, तो ये यहाँ पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर से ये नहीं चलेगा। There we will have to use this kind of scenario where I am using, because I have now done operator overloading। देखो मैं अब क्या करती हूँ, मैं इसको हटा के देखती हूँ, इसको मैं काट देती हूँ और इसको मैं यहाँ पर अब चला के देखती हूँ। मैंने इसको सेव किया है, 1 मिनट जस्ट, हाँ मैं इसको सेव करती हूँ। मैं इसको अब कंपाइल एंड एग्जीक्यूट कर रही हूँ। So it should give one error because here I have declared the object, but अगर मैं यहाँ default को हटा देती काम नहीं करेगा। ठीक है, so now if I am having this t1 is equal to x, so this should be assumed as this t1 dot operator is equal to x। ठीक है, so now I am again explaining this कि यहाँ पर हमने क्या किया है, हमने basic to, ये डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर के कारण काम कर रहा है। ठीक है, अच्छा, तो आई हैव कन्वर्टेड वन बेसिक डेटा टाइप टू क्लास टाइप। कैसे किया हमने? विद हेल्प ऑफ कंस्ट्रक्टर। सेकंड थिंग इज दैट आई एम डूइंग विद द ऑपरेटर ओवरलोडिंग। अगर हम कंस्ट्रक्टर के साथ में ये एग्जांपल करते हैं, देन आई हैव टू हियर आल्सो ड्यूरिंग टाइप कन्वर्जन यूजिंग द कंस्ट्रक्टर वी कैन pass only one argument and we can do type conversion at the time of initialization only। ठीक है, तो आप क्या कर सकते हैं, आपको सिर्फ एक ही यहाँ पर पैरामीटर पास करना है, चाहे आपके जितने मर्जी वहां पर और भी डेटा मेंबर हो, आपको एक ही आर्ग्यूमेंट पास करना है किसमें, कंस्ट्रक्टर में। ठीक है, अगर कंस्ट्रक्टर का मेथड आप यहाँ पर यूज कर रहे हैं, there are two ways। if you are using constructor method to do typecasting, to do type conversion, then we have to do it only at the time of initialization and we have to pass only one argument in the constructor। हमने क्या किया था यहाँ पर, ये जो कंस्ट्रक्टर है यहाँ हमने एक ही आर्ग्यूमेंट पास किया, तभी हम यहाँ पर इसको वैल्यू दे सकते हैं। ठीक है, अब वो अगर हम ऐसा सिनेरियो करते हैं तो ये वाली लाइन भी इसमें एरर देगी। अब मैं आपको बता देती हूँ कैसे देगी। नाउ आई हैव डिलीटेड दैट डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर। तो यहाँ पर हमारे पास में t1 इज इक्वल टू x जो है, सो नाउ हेयर यू कैन सी कि यहाँ पर जो यहाँ पर ये लाइन एक्सप्लेन की गई है दैट वी हैव टू टाइप कन्वर्जन एट द time of initialization only। So whenever you are doing this initialization, only then you have to do like this। Here only you have to declare। Now इसको मैं फिर अब यहाँ हटा देती हूँ and then I am again saving this and again I am executing this। Now it will work। Why? Because I am using parameterized constructor and here at the time of declaration what happens, it will call this parameterized constructor। ठीक है, now it will work। तो ये अपने it is taking time to give the output। okay, so now if you want कि हमारे पास में ऐसा सिनेरियो ना आए कि मुझे डिक्लेरेशन के टाइम पे मैं इसको नहीं देना चाह रही हूँ, इस वैल्यू को यहाँ पर मैं टाइप कन्वर्जन नहीं कर रही हूँ, तो फिर मुझे क्या करना होगा? तो फिर मैं क्या करती हूँ, मैं यहाँ पर मेरे को अब कंस्ट्रक्ट पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर नहीं, आई विल बी ओवरलोडिंग दिस इक्वल टू ऑपरेटर। ऐसे इक्वल टू ऑपरेटर को ओवरलोड करते हैं वो हमने देखा हुआ है ऑपरेटर ओवरलोडिंग में। देन आई कैन राइट हियर दिस void operator and I can write this, I can overload this equal to operator। उसमें आप एक argument ले लीजिए, right, and then you can give that argument value to A and B members of test class। ठीक है, और हमें पता है कि हम if I write t1 is equal to x, so that means t1 object is calling this equal to operator t1 dot operator and this x will be taken as the argument। okay, yes, so I'm repeating the basic to user defined data type
वो सिनेरियो होता है जब हमारे पास में एक बेसिक डेटा टाइप कन्वर्ट की जा रही है, किसमें, यूजर डिफाइंड डेटा टाइप में। उसमें हमारे पास में दो केसेस होते हैं। सोल्यूशन, इसको सॉल्व करने का या इसको कन्वर्ट करने का क्या सोल्यूशन है, वी हैव टू केसेस दैट I can do it with the help of a constructor or I can do operator overloading। इक्वल टू ऑपरेटर को आप ओवरलोड कर दीजिए, ठीक है। जो यहाँ पर आपके एग्जांपल्स दे रखी हैं इसमें, उस once we can go through those examples also, right? So this is the example that is done for basic to user defined data type. So here a class time is taken and there I am taking one, see this, now it is with the help of a constructor। तो एक constructor बनाया है, ये parameterized constructor है। And how many parameters are given? You can see here only one parameter is given. So it is rule, if you have to convert from basic to user defined data type, you have to provide only one parameter in the पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर, ठीक है। तो इसको हमने कैसे डिफाइन किया, डिफाइन जो है वो हमने क्लास के बाहर किया है, तो उसको हमने, आप उसमें कुछ भी डेफिनेशन दे सकते हैं, राइट। तो यहाँ टी जो भी आ रहा है, कोई एक पैरामीटर, यू आर डिवाइडिंग इट बाय 60 एंड यू आर पुटिंग इनटू आवर्स एंड मिनट्स एंड डिवाइड, तो इसका मॉड लेके आप मिनट्स में आप डाल रहे हैं, ठीक है। सो दिस आवर्स एंड मिनट्स आर द डेटा मेंबर्स ऑफ द क्लास टाइम, वो यहाँ पर थर्ड एंड फोर्थ लाइन में यहाँ डिफाइन किया गया है, ठीक है। अब अगर डिस्प्ले नाम का फंक्शन है जो सी आउट करवा रहा है, अगर मेन फंक्शन में देखते हैं हम, देखिए मेन फंक्शन में आई हैव int duration। व्हाट इज दिस? ड्यूरेशन इज द वेरिएबल ऑफ इंटीजर डेटा टाइप, यूजर से इनपुट करवा रहे हैं, ठीक है। एंड व्हाट डज दिस लाइन मीन, 23rd लाइन, टाइम t1 is equal to duration, time t1 is equal to duration, what is this, t1 is the object और duration क्या है, वो तो integer data type का है, basic data type, right, that will be taken as input from the user। अब इसको कैसे कर सकते हैं, सो अगर कंस्ट्रक्टर बनाया है तो आपको यहाँ पर क्या है, जहां पर आपको जहां आपने इसको डिक्लेयर किया इनिशियलाइज भी आपको वहीं करना पड़ेगा, राइट, ठीक है। तो इसको अगर आप इसको चला के देख लेंगे, इट विल वर्क वेरी वेल, ठीक है। सेकंड केस है हमारे पास में, अगर आप ये चाहते हैं कि मैं यहाँ पर इक्वल टू ड्यूरेशन ना देके यहाँ पर मैं दूं कि t1, here I am writing t1 is equal to then duration, then what we have to do, then I have to ये पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर से काम नहीं चलेगा अगर मुझे ये वाला सिनेरियो चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर हमें क्या यूज करना पड़ेगा, यहाँ हमें ऑपरेटर ओवरलोडिंग करनी पड़ेगी, तो यहाँ पर ऑपरेटर ओवरलोडिंग करनी पड़ेगी, ठीक है। ऑपरेटर ओवरलोडिंग के लिए क्या चाहिए हमें, हम, दिस इज द डेफिनेशन फॉर ऑपरेटर ओवरलोडिंग। आपने जो पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर में रखा था वही सिनेरियो आप यहाँ पर ऑपरेटर ओवरलोडिंग में दे दीजिए, ऑपरेटर इक्वल टू एंड देन व्हाट इज दिस, यू आर गिविंग वन आर्ग्यूमेंट एज टी, ठीक है। तो हमने क्या अभी पढ़ा है अभी के लिए, दैट वी हैव लर्नड हाउ टू कन्वर्ट अ बेसिक डेटा टाइप टू क्लास टाइप कन्वर्जन। इसमें अगर आपको कोई डाउट है पहले तो पूछिए, यू कैन रेज योर हैंड, इफ यू हैव एनी डाउट प्लीज आस्क मी, इफ यू हैव एनी डाउट टिल नाउ प्लीज आस्क मी, अदरवाइज अगर कुछ है आपके पास में डाउट तो पूछिए। तो मैंने सबसे पहले आपको ये एक्सप्लेन किया था, नॉर्मली जो प्रिमिटिव डेटा टाइप होती है बेसिक टू बेसिक, तो हमारे पास में ये कन्वर्जन हो जाती है, बट सिनेरियो वी हैव टू डिस्कस इज if I have to change one, convert one basic data type to user defined data type, yes, or vice versa, one user defined data type, आपके पास में user defined data type है and then you are converting it to basic data type, yes, और last रहेगी आपका one user defined data type to other user defined data type, ठीक है। ये हमारे पास में सिनेरियो है, हमने इसमें अभी फर्स्ट सिनेरियो कवर किया है, ठीक है, बेसिक टू यूजर डिफाइंड डेटा टाइप। तो उसमें हमने पढ़ा है कि जो भी हमने जो सोल्यूशन है इसका ऐसे सिनेरियो को सॉल्व करने का, क्या है, फर्स्ट आई कैन यूज द कंस्ट्रक्टर, if I have to use the constructor then I will be creating a parameterized constructor and that parameterized constructor should contain only one argument, only then it will be possible to give the values to these data members, right,
ठीक है। और दूसरा इसमें क्या कंडीशन है हमारे पास में, अगर आप पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर यूज करते हैं तो आपको यहाँ पर ऐसा इक्वेट करना पड़ेगा, जहां इनिशियलाइज आपको यहीं पर कर देना पड़ेगा। इफ यू डोंट वांट दिस काइंड ऑफ सिनेरियो देन यू यूज द सेकंड ऑप्शन। सेकंड ऑप्शन हमारे पास में क्या है, टू ओवरलोड दिस ऑपरेटर। ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन क्या है आपके पास में, पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर, और सेकंड ऑप्शन आपके पास में क्या है, ओवरलोड इक्वल टू ऑपरेटर। तो हमने ये दोनों करके देखे हैं। ठीक है, so if you have any question till now you can ask. We have only 3 minutes left. I'll take your questions if you have. Then we'll discuss the other two scenarios, these two scenarios in the next class. If you have any questions please ask. कुछ नहीं समझ में आया है तो पूछिए, अगर सब कुछ समझ में आ गया है तो भी बताइए। यस हर्षजीत, यस हर्षजीत। मैम एरो ऑपरेटर की ओवरलोडिंग आपने कहा सिलेबस का पार्ट नहीं है? हाँ मेरे ख्याल से नहीं है वो, बट इस पीपीटी में दिया हुआ है। जो कॉमा ऑपरेटर है आई थिंक वो भी नहीं है, बट कॉमा भी मैंने कराया है आपको, बट 2 ब्रैकेट्स जो हैं वो हैं उसमें, बट इवन देन आई विल कंफर्म फ्रॉम द कोऑर्डिनेटर। ठीक है, एक बार सिलेबस में एक बार चेक करके फिर से आई विल कंफर्म, एंड इफ आई कैन आस्क द कोऑर्डिनेटर आल्सो, आई विल कंफर्म अबाउट दैट। ठीक है, आपने तो अभी सारे ही किए हैं तो सब कर सकते हो, मैंने तो सारे ही करवाए हैं आपको, तो कर सकते हो सारे। ठीक है, any other question please ask.